أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. صدق اللہ العظیم. یہ آیتیں گزشتہ کل آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کی بات چیت اپنی قوم کے ساتھ میں جو ہو رہی تھی اس کا تذکرہ چل رہا تھا. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے بات چیت فرمائی. لا یظلمنکم شقاقی، میری دشمنی، میرے ساتھ میں عداوت تم کو اس بات پر نہ ابھارے یا مجبور نہ کرے. ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ کہیں تم پر پہنچ جائے ایسا عذاب جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب پہنچا تھا، یا ہود علیہ السلام کی قوم کو عذاب پہنچا تھا، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو عذاب پہنچا تھا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور نہیں ہے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اور لوگوں کو اور امت کو سمجھا رہے تھے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو، ہود علیہ السلام کی قوم کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا، عذاب کے اندر میں مبتلا کر دیا جب ان لوگوں نے وقت کے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی. اخیر کے اندر میں اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، اور قوم لوط یہ تم سے کوئی دور نہیں ہے. اس کے علماء اور مفسرین نے دو مطلب لکھے ہیں. پہلا مطلب تو یہ لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام کا زمانہ ان سے کوئی بہت لمبا چوڑا دور نہیں تھا، قریب ہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک اور برباد کیا، اور جو زمین کا عذاب ان پر آیا کہ زمین کو اٹھایا اور الٹا کر دیا. یہ مکہ مکرمہ سے ملک شام کا جب سفر کرتے تھے اس وقت کے اندر میں اس بستی سے گزرتے بھی تھے. تو اس کے دو مطلب بیان کی علماء کرام نے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ان کا زمانہ بھی دور نہیں، ابھی تھوڑے سالوں پہلے عذاب آیا. یا یہ کہ مکہ مکرمہ سے ملک شام کا تم سفر کرتے ہو تو راستے کے اندر میں یہ بستیاں پڑتی ہیں، کوئی دور نہیں ہے، وہاں جا کر کے دیکھو اور عبرت حاصل کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے اوپر میں جو عذاب نازل فرمائے اس کا تذکرہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو فرمایا. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف تم رجوع کرو. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب اور میرا پروردگار بڑا مہربان ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے. آدمی اگر کفر کرے یا اگر شرک کرے یا گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ کبیرہ یہ انجام دے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا پروردگار بڑا مہربان ہے، ودود بڑی محبت کرنے والا ہے.
इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग सहाबा किराम के अंदर में ऐसे भी गुजरे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कलमा पढ़ा। उसके बाद में कलमा पढ़ने के बाद उन्होंने पूछा कि मेरे ज़िम्मे अभी क्या ज़रूरी है। उलमा ने लिखा है कि उस वक्त के अंदर में कोई नमाज का वक्त भी नहीं था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फ़र्ज है, नमाज फ़र्ज है, ज़कात देना है, रोज़ा रखना है, ये वगैरह सारी चीज़ें बताई। और उसके बाद में फरमाया कि फ़लानी जगह के अंदर में जिहाद हो रहा है, वहाँ पर जाओ और अल्लाह के रास्ते के अंदर में लड़ो। तो वो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और वहाँ पर जा कर के शहीद हो गए। उलमा किराम ने लिखा है कि ईमान लाने के बाद कोई भी अमल उन्होंने नहीं किया, न नमाज पढ़ी, न रोज़ा रखा, न ज़कात दी, न हज अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म था उसके अंदर में वो शहीद हो गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इस्लामु यहदिमु मा कान क़ब्लहु, अल इस्लामु यानी मुसलमान होना, यहदिमु गिरा देता है, मिटा देता है, मा कान क़ब्लहु जो इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह होते हैं इन तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी हदीस है कि हज के बारे के अंदर में भी आता है कि जो आदमी हज करे और उसके अंदर में फिस्को फजूर, गाली गलूज, झगड़ा वगैरह न करे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजा का यौमिन वलदतहु उम्मु, वो वापस आता है तो ऐसा वापस आता है कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, जैसा कि आज उसको उसकी माँ ने जना हो। बच्चा जब पैदा होता है तो मासूम होता है, कोई भी छोटा बड़ा गुनाह उसके ऊपर में नहीं होता, बिल्कुल साफ शफ़ाफ होता है। हज करने के बाद में भी ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम है, तौफीक है। इस्लाम लाने से पहले आदमी ने कुफ्र किया, शिरक किया, जुल्म किया, कत्ल गारतगिरी की, नाउज़ु बिल्लाह, ज़िना कारियाँ की, क्या क्या नहीं किया। जितने भी बुरे बुरे अमाल हो सकते थे सब अमाल किए और कलिमा पढ़ा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, मुसलमान होना ये इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह होते हैं उन तमाम गुनाहों को मिटा देता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, तुम्हारे परवरदिगार से माफ़ी मांगो, गुनाहों को माफ़ कराओ, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसकी तरफ तुम रुजू करो, तवज्जुह करो, मुतवज्जिह हो जाओ। इन्न रब्बी रहीमुन वदूदुन, बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा मेहरबान और बड़ी मोहब्बत करने वाला है। अभी एक दो दिन पहले भी हमारे इमाम साहब ने, मौलाना ने सुनाया था कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की तौबा से कैसा खुश होता है। ये हदीस शरीफ का मफ़हूम जो बताया था, तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा खुश होता है और बड़ा मेहरबान है और बड़ी मोहब्बत करता है। वदूद, वदूद कहते हैं बड़ा मोहब्बत करने वाला। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को और अपनी उम्मत को समझाया। सीधी सादी बातें थी कि तुम पर अज़ाब आएगा, जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, हूद की कौम पर, सालेह की कौम पर, लूत की कौम पर अज़ाब आया, तुम पर अज़ाब आएगा। तौबा और इस्तिग़फ़ार करने के लिए कहा, तौबा और इस्तिग़फ़ार की फजीलत बतलाई। सीधी सादी बातें थी, लेकिन कालू, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, कालू या शुएबू, लोगों ने कहा कि शुएब, मा नफ़क़हू कसीरम मिम्मा तक़ूल, जो कुछ भी तुम कह रहे हो उनमें से ज़्यादातर बातें हमारी समझ में नहीं आती। मा नफ़क़हू, हम समझते नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो और तुम क्या कहते हो। व इन्ना लनराका फ़ीना दईफ़ा, और बेशक हम आपको हमारे दरमियान के अंदर में एक कमज़ोर समझते हैं, कमज़ोर आदमी समझते हैं, यानी कोई तुम ताकतवर नहीं हो, कमज़ोर आदमी हो। वलौला रहतुका, अगर तुम्हारी जमात न होती, तुम्हारा ख़ानदान न होता, लरजमनाका, तो हम तुमको पत्थर मार मार करके मार डालते। वमा अंत अलैना बिअज़ीज़, और तुम हमारे खिलाफ में कोई भारी नहीं हो, ज़बरदस्त नहीं हो, तुम तो कमज़ोर हो।
तुम्हारे कबीले की वजह से, तुम्हारे ख़ानदान की वजह से या तुम्हारे दोस्त अहबाब की वजह से हमें डर लगता है कि अगर हम तुम पर हमला करेंगे तो तुम्हारे ख़ानदान वाले, कबीला वाले, दोस्त अहबाब हम पर हमला करेंगे। अगर ये तुम्हारी जमात न होती, ख़ानदान न होता तो हम तुमको रज्म कर देते। ल रजम ना क, रजम ना, पत्थर मार मार करके मार डालना। जैसे कोई औरत और मर्द शादीशुदा है और ज़िनाकारी करे, इस्लामी हुकूमत है, तो उसके अंदर में उसकी सज़ा ये है कि आदमी को सीने तक खड्डा खोद करके उसको गाड़ दिया जाए, फिर उसके ऊपर में लोग पत्थर मारे और पत्थर मार कर उसको हलाक और बर्बाद कर दे। उसको रज्म कहते हैं, संसार करना कहते हैं। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने फरमाया, वलौला रहतुक, अगर तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारे दोस्त अहबाब वगैरह न होते, लरजमनाक, तो हम तुमको पत्थर मार करके हलाक कर देते। वमा अंत अलैना बिअज़ीज़, और आप हम पर कोई ज़बरदस्त नहीं हो, गलबा पाने वाले नहीं हो। इस आयत की तफसीर के अंदर में जैसा कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने फरमाया, कालू या शुएब, लोगों ने कहा कि शुएब, मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल, जो कुछ भी तू कहता है तो बहुत सी बातें हम समझते नहीं हैं। व इन्ना लनराका फ़ीना ज़ईफ़ा, और बेशक हम ज़रूर आपको हमारे दरमियान के अंदर में ज़ईफ़ समझते हैं। ज़ईफ़ का एक तर्जुमा, और आम तौर पर ज़ईफ़ का तर्जुमा अरबी ज़बान के अंदर में कमज़ोर को कहते हैं कि फ़लाना ज़ईफ़, फ़लाना ज़ईफ़ है यानी कमज़ोर है। तो एक ज़ईफ़ का तर्जुमा तो उलमा ने लिखा, जो आम तौर पर ज़ईफ़ का तर्जुमा किया जाता है कि आप हमारे दरमियान के अंदर में कमज़ोर है, आप कोई ताकतवर नहीं है। दूसरा तर्जुमा ज़ईफ़ का उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आप नाबीना हो, आपकी निगाहें जो है वो कमज़ोर हैं। व इन्ना लनराका फ़ीना ज़ईफ़ा। फिर इसकी तफसीर के अंदर में और तशरीह के अंदर में लिखा है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसा कि कल हमने अर्ज़ किया था कि नफल नमाजें बहुत पढ़ते थे, एक बात, और दूसरी सिफत और खासियत उनकी ये थी कि रोते बहुत थे, अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के डर से रोते बहुत थे। इसकी वजह से इनकी बिनाई और इनकी आँखों की रोशनी चली गई थी या कमज़ोर हो गई थी। फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रोशनी को और बिनाई को वापस कर दिया, जैसा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में है। सूरह हूद के बाद में सूरह यूसुफ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की फिराक और जुदाई के अंदर में रोते रहे। वब्यज़्ज़त ऐनाहु, याकूब अलैहिस्सलाम की आँखें जो है वो सफ़ेद हो गई। सफ़ेद होने का एक मतलब तो उलमा और मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि रोते रोते अब आँखों के अंदर में आंसू भी बाकी नहीं रहे, उनकी बिनाई चली गई। और दूसरा एक मतलब ये लिखा है कि आँख के बीच के अंदर में जो पुतली है, काली की जो है, काली पुतली, रोते रोते जो है ये काली पुतली जो थी वो ख़त्म हो गई थी, और वो भी रोने की वजह से सफ़ेद हो गई थी। जैसा कि आँख है और आँख के बीच के अंदर में पुतली न हो, काली पुतली हो न हो, तो आँख बिल्कुल पूरी सफ़ेद नज़र आए, इस तरीके से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँखें जो है सफ़ेद हो गई थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बिनाई को वापस किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आया और मिस्र से मुल्क शाम के अंदर में, और उन्होंने उस कुर्ते को छोया और पहना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बिनाई को वापस कर दिया, रोशनी को वापस कर दिया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कोई दूर नहीं है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोते 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 नाबीना हो गए हों, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बिनाई को और रोशनी को वापस किया हुआ हो। वलौला रहतुका लरजमनाका, अगर आपका ख़ानदान, आपकी बिरादरी, आपके दोस्त अहबाब अगर न होते, लरजमनाका,
तो हम तुमको पत्थर मार मार करके हलाक कर देते। वमा अंत अलैना बि अजीज, और आप हम पर कोई भारी नहीं है, ज़बरदस्त नहीं है। इसके बाद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और समझाया अपनी कौम को और अपनी उम्मत को, और समझाया कि मैं अल्लाह के अहकाम को पहुंचाता हूँ दावत और तबलीग के रास्ते से, तो तुमको डर लगता है हमारे दोस्त अहबाब का या हमारे ख़ानदान का, हमारे कबीला वालों का। या अगर हमारा कबीला बड़ा ना होता, ख़ानदान बड़ा ना होता, दोस्त अहबाब की कसरत और जमात बड़ी ना होती, तो तुम हमको हलाक और बर्बाद कर देते। शुएब अलैहिस्सलाम ने इस बात के बाद में यूँ समझाया कि तुमको लोगों का डर लगता है, हमारे कबीले से तुम डरते हो, हमारी जमात से तुम डरते हो कि कहीं तुम पर हमला ना कर दे। और अल्लाह तबारक व तआला इससे भी ज़बरदस्त है, बड़ी ताकत वाला है, तो इससे तुमको डर नहीं लगता। मेरे ख़ानदान से तुम डरते हो और कबीले से तुम डरते हो और अल्लाह से नहीं डरते। क़ाला, शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाहि, यानी क्या, रहती मेरी जमात, मेरा कबीला, मेरी ख़ानदान, अअज़्ज़ु अलैकुम तुमको भारी लगती है, ज़बरदस्त लगती है, मिनल्लाहि अल्लाह के मुकाबले के अंदर में। मैं अल्लाह के अज़ाब से डराता हूँ तो तुम अल्लाह से तो डरते नहीं, और मेरे कबीले से डरते हो, मेरे ख़ानदान से डरते हो, मेरे दोस्त अहबाब से डरते हो। वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, बजाय इसके कि तुम अल्लाह को मानते और मुझ पर ईमान लाते, अल्लाह से डरते नहीं। वत्तख़ज़्तुमूहु, तुमने तो अल्लाह को डाल रखा है, वराअकुम अपने पीछे, ज़िहरिया बुला करके, अल्लाह को बुला दिया और पीछे डाल दिया। व इन्न रब्बी बिमा ताअमलून मुहीत, बेशक इन्न रब्बी बिमा ताअमलून मुहीत, बेशक मेरा रब, मेरा परवरदिगार, बिमा ताअमलून जो कुछ भी तुम करते हो, मुहीतुन उसका इहाता करने वाला है, उसका लिखने वाले फरिश्ते लिखते हैं इंसानों के आमाल, बंदों के आमाल, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के ज़रिया से लिखवाते हैं। वया कौम अमलू अला मकानतिकुम, उसके बाद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या कौमी, ए मेरी कौम, इअमलू अला मकानतिकुम, तुम अपनी जगह के ऊपर में अमल करो। इन्नी आमिल, मैं अपनी जगह के ऊपर में अमल करता हूँ। सौफ तअलमून, अनकरीब तुम जान लोगे, मन यातीही अज़ाबुन युग़ज़ीही वमन हुवा काज़िब। सौफ तअलमून, अनकरीब तुम जान लोगे, मन यातीही अज़ाबुन युग़ज़ीही, के किसके पास में अज़ाब आता है जो उसको रुसवा कर दे। वमन हुवा काज़िब, और अनकरीब तुम जान लोगे कि झूठा कौन है, मैं झूठा हूँ या तुम झूठे हो, मुझ पर अज़ाब आता है या तुम पर अज़ाब आता है। अज़ाब आएगा तो मुझे रुसवा करेगा अल्लाह का अज़ाब, या तुमको रुसवा करेगा। वरतक़िबू, इंतज़ार करो, इन्नी माअकुम रक़ीब, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाला हूँ, अल्लाह का अज़ाब इसका मैं इंतज़ार करता हूँ। वलम्मा जाअ अमरुना, और जब हमारा हुक्म आया, यानी अज़ाब का हुक्म आया, नज्जैना शुऐबन, हमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नजात दे दी, वल्लज़ीना आमनू मअहू, और उन लोगों को नजात दे दी कि जो शुएब अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए थे। बिरहमतिन मिन्ना, हमारी तरफ से मेहरबानी हुई, उनके साथ में रहम करम का मामला हुआ। व अख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमू अस्सैहतु फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन कअन लम यग़नव फ़ीहा अला बअदन लिमदयन कमा बअदत समूद। व अख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमू अस्सैहतु, जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको पकड़ लिया चीख ने। सैहतुन, सैहतुन चीख को कहते हैं। फ़अस्बहू,
चुनांचे सुबह के वक्त के अंदर में हो गए, फी दियारिहिम, अपने घरों के अंदर में, जासिमीन, ऊंधे लेटे हुए, ऊंधे पड़े हुए, काल्लम यग्नव फीहा, ऐसा लगता था कि उन घरों के अंदर में ये लोग आबाद ही नहीं हुए थे, मौजूद ही नहीं थे। काल्लम यग्नव फीहा, अला सुनो, बअदन लिमदियन कमा बइदत समूद, मदियन वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक और बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सुनो, बअदन लिमदियन, मदियन वालों को अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया, कमा बइदत समूद, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद को अपनी रहमत से दूर किया था। यहाँ मुख्तसर तौर पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा ख़त्म हुआ। यहाँ पर ये सूरह हूद है। सूरह हूद के अंदर में इनके अज़ाब का तज़किरा किया कि इन पर कौन सा अज़ाब आया। व अख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमू अस्सैहतु, सैहा, सैहतुन चीख को कहते हैं। ये कौम शुएब जो है रात के वक्त के अंदर में सो गई, अल्लाह का अज़ाब आया और फरिश्ते ने आकर के चीख मारी। इस चीख की वजह से उनके दिल, दिमाग और कलेजे फट गए और मर गए। और फअस्बहू फी दियारिहिम जासिमीन, तो ये अपने घरों के अंदर में सुबह के वक्त के अंदर में ऊँधे पड़े हुए थे। काल्लम यग्नव फीहा, ऐसा लगता था कि मदीन के अंदर में या मदाइन के अंदर में कोई बसने वाला बसता ही नहीं था। अला बअदन लिमदियन, सुनो अल्लाह की रहमत से दूर हुए मदीन वाले, कमा बइदत समूद, जैसा कि कौम समूद अल्लाह की रहमत से दूर हुए। यहाँ सूरह हूद के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया वो फरिश्ते ने आकर के चीख मारी। ये सैहत उनका लफ्ज़ यहाँ पर है। और यहाँ आगे जो है सूरह आराफ के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने इनका तज़किरा फरमाया है। मुख्तसर तर्जुमे के साथ में मैं ज़िक्र कर दूँ, फिर उसके बाद बताऊँ कि यहाँ कौन से अज़ाब का तज़किरा हुआ और उलमा और मुफस्सिरीन ने क्या लिखा। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू, ये भी 8वें पारे के अंदर में भी शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। व इला मदयन अख़ाहुम शुऐबा, और हमने मदयन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक दलील और एक निशानी तुम्हारे पास में आ चुकी है। फ़अऊफ़ुल कैला वल मीज़ाना, लिहाजा नाप और तोल पूरा पूरा दो। वला तबखसुन नास अशियाअहुम, और लोगों को उनकी चीज़ों को कम करके मत दो। वला तुफसिदु फिल अर्दि बाद इस्लाहिहा, और ज़मीन के अंदर में उसकी इस्लाह के बाद में फसाद मत फैलाओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। और वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुईदूना व तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि, और मत बैठो किसी भी रास्ते के ऊपर में लोगों को डराते हुए, धमकाते हुए। कल बताया था कि शुएब अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम एक ये भी करती थी कि लोगों को रोकते थे शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाने से, या तो फिर ये डाका जनी करते थे, रास्ते के अंदर में लूट लेते थे। व तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से तुम रोकते हो। मन आमन बिही, जो उस पर ईमान लाया उसको। व तबगूनहा इवजा, और इसके ज़रिया से तुम टेढ़ा रास्ता इख्तियार करते हो। वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम, इतना तो याद करो कि एक ज़माने के अंदर तुम बहुत थोड़े थे। फ़कस्सरकुम, अल्लाह ताला ने तुमको बहुत ज़्यादा कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर में जो आया था कि तकरीबन नूह अलैहिस्सलाम के साथ 80 लोग थे, बस रूए ज़मीन पर पूरी दुनिया पर इतने लोग थे। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल को बढ़ाया। वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, और देखो गौर फिक्र करो फितना फसाद मचाने वालों का अंजाम क्या होता है। व इन कान ताइफ़तुम मिनकुम आमनु, और तुम में से एक जमात ईमान लाई, बिल्लज़ी उरसिलतु बिही,
उस चीज़ के ऊपर में जिस चीज़ को लेकर के मुझे भेजा गया, वह ताइफतुन लम युमिनु, और एक जमात वो है कि ईमान नहीं लाई, फस्बिरू, सब्र करो, हत्ता यहकुमल्लाहु बैनना। शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दरमियान में फ़ैसला कर दे, वह वो खैरुल हाकिमीन, और वो तमाम फैसला करने वालों में बेहतर फैसला करने वाला है। ये बात जब शोएब अलैहिस्सलाम ने बताई तो फिर उनकी कौम के जो बड़े बड़े लीडर और सरदार थे उन्होंने कहा, क़ालल मलउल लज़ीना इस्तकबरू, कहा सरदारों ने, अल्लज़ीना इस्तकबरू, जिन्होंने तकब्बुर किया, मिन कौमिही, शोएब अलैहिस्सलाम की कौम में से बड़े बड़े लोगों ने कहा, लनुखरिजन्नक या शुआइबु वल्लज़ीना आमनु मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, कि लनुखरिजन्नक, ज़रूर बेज़रूर हम तुमको निकाल देंगे, ये शुआइब, वल्लज़ीना आमनु मअक, और उन लोगों को भी निकाल देंगे जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं। कहाँ से निकाल देंगे? मिन क़रयतिना, हमारे गांव से निकाल देंगे। औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या ये कि तुम हमारे मजहब के अंदर में वापस आ जाओ। तो ये शोएब अलैहिस्सलाम के ज़माने की बातें हैं। शोएब अलैहिस्सलाम का ज़माना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना एक है, तो उनके ज़माने की बातें हैं। मुशरिकीन और कुफ़ार का यही काम था, लनुखरिजन्नक या शुआइबु वल्लज़ीना आमनु मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, हमारे गांव से, मुल्क से हम या तो तुमको निकाल देंगे या तुम हमारे मजहब की तरफ वापस आ जाओगे। तो ये घर वापसी जो है ना, ये पुरानी चीज़ है। घर वापसी वाली जो बात है वो बहुत पुरानी चीज़ है। औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, क़ाल, शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अवलौ कुन्ना कारिहीन, अगर हम न चाहें, फिर भी हम न चाहें, यानी मजहब को न छोड़ना चाहें, तो भी आप हम पर ज़बरदस्ती करेंगे, हमको निकाल दोगे। क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बअद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिन्हा। क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबा, तब तो अल्लाह के खिलाफ हमने बड़ा झूठ बांधा। इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम, अगर हम तुम्हारे मजहब के अंदर में वापस लौट आए, बअद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिन्हा, इसके बाद कि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे हमको नजात दे दी, कुफ्र से नजात दे दी, शिरक से नजात दे दी, बुत परस्ती से नजात दे दी, एक वहदहु ला शरीक लहू की हम इबादत करने लगे, अब दोबारा आएंगे तो अल्लाह के खिलाफ झूठ बांधना होगा। वमा यकूनु लना अन नऊद फीहा, और अब जब हम ईमान ले आए शोएब अलैहिस्सलाम पर, तो अब हमारे लिए मुनासिब भी नहीं है कि फिर हम जो है हमारे अगले मजहब की तरफ वापस लौटे। इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना, इल्ला कि हमारा रब चाहे, हमारा परवरदिगार चाहे। अगर हमारा परवरदिगार का हुक्म आ जाए कि तुम अगले मजहब की तरफ लौट आओ, तो अल्लाह के हुक्म को मान करके हम लौट आएंगे। इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुना, इल्ला कि हमारा रब चाहे। कुरान पाक में दूसरी जगह के अंदर में लिखा है कि इन्नल्लाह ला यर्ज़ा बिइबादिही अल कुफ्र, अल्लाह तबारक व तआला बंदों से बंदे जो कुफ्र करते हैं उस कुफ्र से अल्लाह ताला खुश नहीं है, अल्लाह ताला राज़ी नहीं है। एक मरतबा ईमान की दौलत से माला माल कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला दोबारा जो है उसको ईमान से खारिज नहीं करता। इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, हमारा परवरदिगार इल्म के एतबार से हर चीज़ को घेरे हुए है, सारी चीज़ों का इल्म, आसमान से लेकर के तहत सरा तक का सारी छोटी बड़ी मखलूक का इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है। अलल्लाहि तवक्कलना, शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमने अल्लाह ही के ऊपर में तवक्कुल किया, भरोसा किया। रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि, ये हमारे परवरदिगार हमारे दरमियान में और हमारी कौम के दरमियान में हक़ के साथ में फ़ैसला फरमा दे। वअन्त खैरुल फातिहीन, और तो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, और काफिरों में से बड़े लोगों ने कहा, मिन कौमिही, शोएब अलैहिस्सलाम की कौम में से काफिर जो थे, बड़े लोग थे, तो उन्होंने कहा, लइन इत्तबअतुम शुआइबन इन्नकुम इज़न लखासिरून,
अगर तुमने शुएब अलैहिस्सलाम की बात को माना और उनकी बात की पैरवी की तो इन्नकुम इदन लखासिरून, बड़ा नुकसान उठाओगे, बड़ा नुकसान उठाओगे। इन्नकुम इदन लखासिरून। यहाँ तक हद पहुँची तब अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का तज़किरा यहाँ पर आया सूरह आराफ के अंदर में। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, उनको पकड़ लिया ज़लज़ले ने, रजफ़ा यानी ज़लज़ला। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो वो अपने घरों के अंदर में ऊँधे लटके हुए हो गए। देखिए जो सूरह हूद है, सूरह हूद की तफसीर के अंदर में अभी हमने बताया था कि वअख़ज़तिल लज़ीना ज़लमू अस्सैहतु, जिन लोगों ने जुल्म किया यानी कुफ्र और शिरक किया उनको पकड़ लिया सैहा, सैहा यानी चीखने। फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, तो अपने घरों के अंदर में सुबह के वक्त के अंदर में वो ऊँधे पड़े हुए थे। फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, फरिश्ते के चीखने की वजह से मर गए। ये सूरह हूद के अंदर में तज़किरा है। और यहाँ सूरह आराफ के अंदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, उनको ज़लज़ले ने पकड़ लिया यानी ज़लज़ला आया। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो सुबह के वक्त में वो अपने घरों के अंदर में उल्टे पड़े हुए थे। यहाँ पर रजफ़ा का तज़किरा आया। सूरह शारा के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आसमान का साए का अज़ाब का तज़किरा फरमाया। सूरह शारा के अंदर में, सूरह शारा के अंदर में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया। समझाया समझाया समझाया, नहीं समझ में आया तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह के अज़ाब से डराया। तो अल्लाह के जब अज़ाब से डराया तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि फ़अस्क़ित अलैना किसफ़न मिनस्समा इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन, इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे लोगों में से हो, तुम ये कहते हो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ तो तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो। तुम अगर ये कहते हो कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, इसमें अगर तुम सच्चे हो तो फ़अस्क़ित अलैना किसफ़न मिनस्समा, हम पर गिराओ, आसमान पर से एक टुकड़ा गिराओ, आसमान पर से एक टुकड़ा गिराओ अल्लाह की अज़ाब की शक्ल के अंदर में, और इसकी वजह से हम हलाक और बर्बाद हो जाए। तो इसके नतीजे के अंदर में सूरह शुआरा के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब का तज़किरा फरमाया है उसमें अज़ाबु यौम ज़ुल्ला उनके ऊपर में आया, साये के दिन का अज़ाब। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अज़ाब आया तो बादल की शक्ल के अंदर में भी अज़ाब आया था, एक धुएं की शक्ल के अंदर में आया और उसके अंदर में अल्लाह का अज़ाब था। और उसके बाद में जो है ज़लज़ला हुआ और उसके बाद में चीख मारी फरिश्ते ने। गोया तीनों अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर में आया। अब एक मुख्तसर बात मैं अर्ज़ कर दूं कि यहाँ सूरह हूद के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया है कि वअख़ज़तिल लज़ीना ज़लमू अस्सैहतु, चीखने पकड़ लिया यानी अज़ाब आया चीख की शक्ल के अंदर में। उलमाए किराम ने लिखा है कि यहाँ शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शुएब अलैहिस्सलाम के साथ में बहस मुबाहसा करती थी, ज़िद करती थी, ज़बान दराज़ी करती थी। तो यहाँ तक अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर उस्मानी के अंदर में लिखा है कि वो बोलते बहुत थे और झगड़ा और मुबाहसा शुएब अलैहिस्सलाम के साथ में बहुत करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर सैहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अल्लाह ताला ने उनकी बोलती बंद कर दी।
फरिश्ता ने इतनी ज़ोर में चीख मारी, ये जो शुएब अलैहिस्सलाम के सामने चीख चीख करके बातें करते थे, तो इतनी बड़ी चीख फरिश्ते ने मारी कि जिसकी वजह से वो लोग हलाक और बर्बाद हो गए। और फिर यहाँ सूरह आराफ के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के ज़लज़ला का तज़किरा फरमाया कि शुएब अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम के ऊपर में ज़लज़ला आया। तो यहाँ ज़लज़ला का तज़किरा इसलिए फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इसका मज़मून था कि क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना। यह ज़मीन का मसला था। ये शुएब अलैहिस्सलाम के जो मुतकब्बिरीन लोग थे उनकी कौम के, इन्होंने कहा था कि हम तुमको ये शुएब निकाल देंगे, वल्लज़ीना आमनू मअका, और उन लोगों को भी निकाल देंगे जो तुम्हारे साथ में ईमान लाए हैं, मिन क़रयतिना, हमारे गांव से निकाल देंगे, हमारी बस्ती से निकाल देंगे। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि यह मसला था ज़मीन का, कि ज़मीन के ऊपर में रहने नहीं देंगे शुएब अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हलाकत और उनकी बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया। तो किसको इस्तेमाल किया? ज़मीन को इस्तेमाल किया। ज़मीन से निकालने की बात थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हलाक और बर्बाद करने के लिए ज़मीन को इस्तेमाल किया और ज़मीन के अंदर में ज़लज़ला आया। ये उलमा किराम ने लिखी है। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो बात थी, ये बात ख़त्म हुई। इसके बाद में फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़िक्र किया है। इंशाअल्लाह आइंदा कल अर्ज़ करेंगे।